Dear students, come on. Here I am going to start your third lecture on chapter first, resource and development. In previous lecture, we already explained about the definition of resources and also about its transformation. Today I am going to explain a new subject for you. This is classification of a resource. This is very important for you to understand this subject, that what is classification of a resource, how we classify resources on different bases. This classification is very important to take detailed information about a resource. As you know, in every subject, for getting detailed information, we classify different things on different bases. Here also, we will try to understand different resources by its classification on its different bases. So here, I will make classification of resources on different bases. First of all, see here, on the basis of origin, that how resources come. On this basis, the resources can be classified into two major group. Those are biotic and abiotic. See, biotic resource and abiotic resource. Here, this is important for you to understand what is biotic resource and what is abiotic resource. ये समझना आपके लिए आवश्यक है. biotic resource हुआ जो रिसोर्सेस हम लोग लिविंग वर्ल्ड से प्राप्त करते हैं, जिसका ओरिजिन लिविंग वर्ल्ड से होता है, वो हमारे लिए बायोटिक रिसोर्स है. ये सारे रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. जस्ट टेक सम एग्जांपल्स हियर दैट कम्स फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड्स एज लाइफ स्टॉक्स, वाइल्ड लाइफ्स, forests. These are biotic resources. All of these give so many things which we use in our day-to-day life. Second is abiotic resource. Abiotic resource means those resources which comes from non-living world, non-living things. These are also very important. इसका भी महत्व उतना ही है. अबायोटिक रिसोर्स का कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है. ये सारी रिसोर्सेस अबायोटिक रिसोर्स हैं. ये हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बायोटिक रिसोर्स. नाउ कम्स and see the classification on a different subject, different basis, on the basis of exhaustibility. इसका मतलब हुआ कि रिसोर्स का जो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो इस आधार पे कि वो कितने दिनों तक हमारे लिए एग्जिस्ट करता है. वस्तु का या रिसोर्स का नेचर क्या है, उसका हम कैसे यूज करें, किस तरह से यूज करें कि वो हमारे लिए अधिक से अधिक दिनों तक एग्जिस्ट कर सके, हम उसका अधिक से अधिक दिनों तक यूज कर सकें. और ये बेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर टाइप्स here: renewable and non-renewable. You can say here
Renewable means non-exhaustible and non-renewable means exhaustible. This is very important what classification of resource. See here, what is a renewable resource? Renewable resource means those resources which can be renewed by us and which are renewed by nature in a certain period for our next use. इसका मतलब हुआ कि प्रकृति ने कुछ ऐसे रिसोर्सेस बनाए हैं या हम ने भी, मनुष्य ने भी कुछ ऐसा रिसोर्स बनाया है। हालांकि मनुष्य का जो अपना बनाया हुआ रिसोर्स है वो सारे का सारा लगभग रिन्यूएबल है, क्योंकि मनुष्य के पास अपनी टेक्नोलॉजी है और उसको फिर रिन्यूड कर लेगा। लेकिन प्रकृति के पास जो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कुछ रिसोर्स के संदर्भ में, मामले में, और प्रकृति को उसको फिर से बनाने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। और कुछ रिसोर्सेस हैं जिसको प्रकृति तुरंत रिन्यूड करके आपके लिए दे देती है। तो जो रिसोर्सेस तुरंत रिन्यूड हो सकता है, फिर से बन के आपके यूज के लिए दोबारा एक सर्टेन पीरियड के अंदर आ सकता है, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में इसका उदाहरण लीजिए, हवा है, पानी है, लाइफ स्टॉक्स है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। ये सारे कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जो एक सर्टेन पीरियड में फिर से बन के, फिर से तैयार होके हमारे यूज के लिए आ जाते हैं। तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स। Non-renewable resource or exhaustible resource are those resources which cannot be renewed in a certain period, and so they lost their utility in their first use. After that they are not useful for us. इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। इसको समझ लीजिए, प्रकृति ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं जिसको फिर से बनाने का प्रोसेस तो नेचर के पास है, वो तो बनता ही रहता है, वो तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्रकृति का हर चक्र चलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों को बनाने का जो साइकिल है प्रकृति का, वो इतना लंबा जियोलॉजिकल ईयर लेता है कि उसको हम लोग रिन्यूएबल किसी भी मायने में नहीं कह सकते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल है, एज मेटल्स, as fossil fuels, as soil, इसको बनाने में प्रकृति को लाखों वर्षों का टाइम लगता है। लाख नहीं, लाखों, कई मिलियन ईयर्स। तो जिस वस्तु को बनाने में मिलियन ईयर्स लगते हो, वो हमारे आपके लिए जिसका लाइफ स्पैन 60 से 70-80 वर्ष का है, वो उसको हम लोग रिन्यूएबल कतई नहीं कह सकते हैं। तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट यूज के बाद ही अपनी यूटिलिटी खो देता है, तो इस तरह से इसके यूज में हमें खास रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि कितनी सतर्कता आवश्यक है। चलिए, अब आप लोग तो घर में लॉकडाउन होंगे, घर में एकदम सुरक्षित रूप से घर से बाहर कदम नहीं रखना है, घर में ही रहना है, ये आवश्यक है, ये आपके लिए आवश्यक है, आपके परिवार के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके।